Hello everyone. In this lecture, we are going to discuss about the comparison operation with the help of an example. As we were discussing about the logical operations in the previous lecture, and the logical operations which we are discussing are rotate and compare. So we discussed the various instructions related to rotate operation such as RLC, RRC, RAL and RAR. Rotate accumulator left, rotate accumulator left through carry, rotate accumulator right and rotate accumulator right through carry. So we studied the 4 instructions related to the rotate operation in which the accumulator contents can be rotated either left or right and either without carry or with carry. Okay, and also we were discussing about the compare operation in which we discussed 2 instructions, CMP R or M, CMP R or CMP M and CPI 8-bit. So in comparison operation, the contents of either a memory location or a register or any 8-bit data can be compared with the contents of accumulator, and this comparison operation is performed by subtracting the contents of either memory location or register or the given 8-bit data from the contents of accumulator, and then according to the result the flags are modified, and according to the status of flags it is decided whether the content of the memory location or register or the given 8-bit data is greater than or less than or equal to the contents of accumulator. So we discussed all these things in the previous lecture. Now we are going to see the how the compare operation is performed with the help of example. So the example says, write an instruction to load the accumulator with the data byte 64H and verify whether the data byte in memory location 2050H is equal to the accumulator contents. If to the data bytes are equal, jump to memory location buffer. तो इसमें क्या करना है हमें, एक्यूमुलेटर में 64 जो डेटा बाइट है उसको लोड करना है, ठीक है। उसके बाद ये वेरीफाई करना है कि मेमोरी लोकेशन 2050 पर जो भी कंटेंट्स है वो एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स के बराबर है, और अगर दोनों कंटेंट्स बराबर हैं तो मेमोरी लोकेशन जिसका लेवल बफर है वहाँ पर जंप करना है, ठीक है। तो मेमोरी लोकेशन 2050 के कंटेंट को एक्यूमुलेटर के कंटेंट से कंपेयर करने के लिए पहले तो जो मेमोरी लोकेशन का कंटेंट है उसे मतलब पहले उसे पॉइंट आउट करना होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, अगर एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स को मेमोरी लोकेशन के कंटेंट से कंपेयर करना है तो वी कैन यूज द इंस्ट्रक्शन CMP M. CMP M इंस्ट्रक्शन कैन बी यूज्ड। तो जहाँ पर M क्या इंडिकेट कर रहा है, M जो ऑपरेंड है वो इंडिकेट कर रहा है कि मेमोरी को और मेमोरी में कौन से लोकेशन को, उस लोकेशन को HL रजिस्टर पेयर पॉइंट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले HL रजिस्टर पेयर को 2050 एड्रेस से लोड करना होगा, तो वी कैन यूज द इंस्ट्रक्शन LXI H 2050, ओके। देन ये क्या हुआ, ये हमने HL पेयर में 2050 को लोड किया, जिससे कि ये जब हम CMP M इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे
तो वहाँ पर ये मेमोरी पॉइंटर की तरह काम करेगा। ओके, एक और काम करना है कि एक्यूमुलेटर को लोड करना है 64H से, तो वी कैन यूज द इंस्ट्रक्शन MVI because accumulator is an 8-bit register. So to load an 8-bit register with the immediate data given in the instruction, we can use the instruction MVI. So MVI A comma 64H instruction can be used here. उसके बाद क्या करना है, एक्यूमुलेटर के कंटेंट और इस मेमोरी लोकेशन पर जो कंटेंट है दोनों को कंपेयर करना है। तो वी कैन यूज द इंस्ट्रक्शन CMPM। इससे क्या होगा, मेमोरी लोकेशन जिसको HL रजिस्टर पेयर इंडिकेट या एड्रेस कर रहा है या पॉइंट आउट कर रहा है, उस लोकेशन पर जो भी कंटेंट होगा वो एक्यूमुलेटर के कंटेंट से कंपेयर होगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करना है, इफ डेटा बाइट्स आर इक्वल, इफ यहाँ पर होना चाहिए इफ both the data bytes are equal then jump to memory location buffer। तो ये कैसे चेक करेंगे कि दोनों डेटा बाइट्स इक्वल हैं कि नहीं, तो इसके लिए कल हमने जब कंपेयर वाला इंस्ट्रक्शन पढ़ा था तो वहाँ पर देखा था कि जब दोनों कंटेंट्स इक्वल हैं तो उस केस में क्या होता है, जीरो फ्लैग सेट हो जाता है। ठीक है, जीरो फ्लैग सेट हो जाता है, तो वी कैन यूज द इंस्ट्रक्शन JZ jump if 0 to the memory location buffer which is labeled as buffer। ठीक है, तो इस तरह से इंस्ट्रक्शंस राइट किया जा सकता है अगर किसी मेमोरी लोकेशन के कंटेंट को एक्यूमुलेटर के कंटेंट से कंपेयर कराना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक्यूमुलेटर में क्या लोड करना है, 64। ठीक है, तो पहले तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज LXI H,2050H। व्हेन दिस इंस्ट्रक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड then L register will be loaded with the lower data byte that is 50 and H register will be loaded with higher data byte that is 20। ठीक, उसके बाद जब MVI A,64 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो जो एक्यूमुलेटर में क्या कंटेंट यहाँ पर हो पाएगा, 64। ठीक है, उसके बाद CMPM जब एग्जीक्यूट होगा तो दो कंटेंट्स कंपेयर होंगे, कौन कौन से, एक तो एक्यूमुलेटर का कंटेंट और दूसरा HL रजिस्टर पेयर जिस मेमोरी एड्रेस को इंडिकेट कर रहा है वहां पर जो डेटा है वो। तो HL रजिस्टर पेयर में 2050 है, इस मेमोरी लोकेशन पर जो भी डेटा है दैट डेटा विल बी कंपेयर्ड विद द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर। ठीक है, ये डेटा 64H से कंपेयर होगी और कंपैरिजन किस मेथड से होता है, 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड से और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन से होता है। एक्चुअली एक्यूमुलेटर का कंटेंट से जो मेमोरी लोकेशन है उसका कंटेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग जो फ्लैग्स होंगे वो मॉडिफाई होंगे। ठीक है, तो इस तरह से कंपेयर इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं। एक एग्जांपल हम ले सकते हैं इसी का कि सपोज कि एक्यूमुलेटर का कंटेंट वही 64 है, तो 64H इन हेक्साडेसिमल it is can be written in the binary number system as 0110 and 0100। और सपोज कि जो मेमोरी लोकेशन है उसका कंटेंट 9AH है। एक दूसरा एग्जांपल हम कंसिडर कर रहे हैं जिसमें किसी मेमोरी लोकेशन का जो कंटेंट है वो 9AH है और इसको एक्यूमुलेटर के कंटेंट से कंपेयर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 9A सब्ट्रैक्ट किया जाएगा 64 से। सब्ट्रैक्ट करने के लिए 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज करता है प्रोसेसर। तो सबसे पहले 9A का 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना होगा। तो 9A का जब 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, ठीक है, तो ये आएगा 9A को हम ऐसे लिख सकते हैं 1001 और A को क्या लिख सकते हैं बाइनरी में 1010।
पहले इसका 1 कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करिए, तो ये हो जाएगा 1 0 1 0 0 1 1 0। फिर जब इसका 2 कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर 1 से ऐड कर देंगे, तो 1 और 1 हो जाएगा 0, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ये कैरी होगा। देन अगेन 1 0 0 1 1 0। तो 9a का 2 कॉम्प्लीमेंट कितना आया 0 1 1 0, दैट इज 6 एंड 0 1 1 0, तो 66 आ गया, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने के लिए 2 कॉम्प्लीमेंट हमने निकाल लिया, अब दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने पर क्या रिजल्ट आएगा 0 plus 0 will be 0, then 0 plus 1 will be 1 and 1 plus 1 will be 0 with 1 carry, here it will be 1 as carry, and 1 plus 0 will be 1 and 0 यहाँ पर 1 हो जाएगा, और 0 plus 0 will be 0, then 1 plus 1 will be 0 with 1 carry, and 1 plus 1 will be 0 and 1 will be carry, and again 0 plus 1 will be 1, तो एक कैरी यहाँ पर आएगा। और ठीक है, उसके बाद 1 plus 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो और कैरी यहाँ पर क्या आ रहा है कैरी 0 आ रहा है, ठीक है। तो अब सब्ट्रैक्शन जब हमने पढ़ा था ऑपरेशन, तो वहाँ पर ये भी पढ़ा था कि सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो कैरी फ्लैग है उसको कॉम्प्लीमेंट करना होता है, कॉम्प्लीमेंट कैरी, द लास्ट स्टेप इज टू कॉम्प्लीमेंट द कैरी। तो 0 का 1 हो जाएगा यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट करने पर, तो रिजल्ट क्या आया 1 1 0 0 एंड 1 0 1 0। सो दिस कैन बी रिटन एज इन हेक्साडेसिमल, 1 1 0 0 कैन बी रिटन एज C and 1 0 1 0 can be written as A, so the result is CAH, ठीक है। and this will modify the flags as साइन फ्लैग क्या होगा यहाँ पर, तो साइन फ्लैग को चेक करने के लिए जो D7 बिट है उसको चेक करते हैं, ठीक है। तो साइन फ्लैग विल बी सेट, और जीरो फ्लैग क्या होगा 0 होगा, क्योंकि जो रिजल्ट है वो 0 तो है नहीं, तो 0 फ्लैग विल बी रीसेट एंड कैरी फ्लैग विल बी 1, एंड कैरी फ्लैग विल बी सेट बिकॉज यहाँ पर कैरी का स्टेटस क्या हो गया 1 हो गया, तो कैरी फ्लैग विल बी सेट। एंड so according to the result of subtraction the flags are modified and the original byte in the accumulator 64H will not be changed। सब्ट्रैक्शन के बाद जो एक्यूमुलेटर का ओरिजिनल कंटेंट है वो चेंज नहीं होगा। जनरली क्या होता है, किसी जब अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होता है या फिर चाहे वो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, तो उसमें एक्यूमुलेटर का कंटेंट जो होता है वो चेंज हो जाता है, उसमें रिजल्ट स्टोर होता है। लेकिन कंपैरिजन ऑपरेशन में जो एक्यूमुलेटर है उसका कंटेंट चेंज नहीं होगा। द ओरिजिनल बाइट इन द एक्यूमुलेटर 64H विल नॉट बी चेंज्ड, ओके। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज काउंटर्स एंड टाइम डिलेज। जो इसमें हम लोग काउंटर और टाइम डिलेज के बारे में पढ़ेंगे। तो काउंटर के बारे में हमने एक बेसिक आइडिया लिया था लास्ट के एक लेक्चर में। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे काउंटर जो है उसको यूज़ किया जाता है। तो जो काउंटर्स एंड टाइम डिलेज हैं, दीज अगर इन प्रोसेसेस को सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन के थ्रू यूज करते हैं तो वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है एज कम्पेयर टू द हार्डवेयर, और समय भी कम लगता है अगर सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस का यूज़ करके काउंटर्स एंड टाइम डिलेज को यूज़ किया जा रहा है। तो और जो काउंटर है, तो काउंटर का यूज क्या है, तो अगर कोई रेपिटेटिव टास्क परफॉर्म करना है तो उसके लिए काउंटर को सेट किया जा सकता है, ठीक है। और कोई मतलब टास्क अगर 100 टाइम्स परफॉर्म करना है फॉर एग्जांपल, तो उसको देखने के लिए कि वो 100 टाइम्स परफॉर्म हो रहा है ये पता होना चाहिए, तो इसके लिए काउंटर को सेट किया जाता है। एंड अगर टाइम डिलेज की बात करें तो किसी दो टास्क के बीच में अगर एक्यूरेट टाइम सेटअप करना है तो उसके लिए टाइम डिलेज का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो काउंटर देखते हैं, काउंटर को थोड़ा सा और समझते हैं।
तो a counter is designed by loading an appropriate number into one of the registers and using the increment or decrement instructions. ओके तो जैसा कि हमने ये समझा कि अगर किसी इवेंट को देखना है कि वो इतने टाइम्स वो परफॉर्म हुआ कि नहीं हुआ, तो इसके लिए एक रजिस्टर में वो काउंट वैल्यू को लोड किया जा सकता है. ठीक है, कैसे डिजाइन करेंगे काउंटर को? तो काउंटर को डिजाइन करने के लिए किसी भी जनरल पर्पस रजिस्टर में जो भी काउंट वैल्यू है, जितने टाइम्स भी उस टास्क को रिपीट करना है, दैट काउंट वैल्यू कैन बी लोडेड इनटू रजिस्टर, वन ऑफ द रजिस्टर. और जब एक बार वो टास्क परफॉर्म हो जाएगा, उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेशन का यूज करके उस काउंट वैल्यू को या तो इंक्रीमेंट करवाया जाएगा या तो डिक्रीमेंट, जिससे कि ये पता चल सके कि उतने बार वो जो टास्क है वो कंप्लीट हो चुका है. So either increment or decrement instructions will be used. And a loop is established to update the count. And each count is checked to determine whether it has reached the final number. तो जैसा कि हमने देखा कि जो एक बार टास्क को परफॉर्म होने के बाद वो काउंट वैल्यू या तो इंक्रीमेंट करवाया जाएगा तो या तो डिक्रीमेंट करवाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ आइदर INR इंस्ट्रक्शन और DCR इंस्ट्रक्शन. एंड दिस इज डन टू चेक वेदर द फाइनल वैल्यू इज रीच्ड और नॉट. इस प्रोसेस को हम लोग इस फ्लो चार्ट की मदद से समझ सकते हैं. इन दिस फिगर द फ्लो चार्ट ऑफ अ काउंटर इज शोन. So first of all, the first step is initialize. Initialize means ये प्रोसेस है काउंटर को डिजाइन करने का. तो पहला स्टेप क्या होगा? इनिशियलाइज मीन्स टू इनिशियलाइज द काउंट वैल्यू एक्चुअली. तो किसी भी रजिस्टर में उस प्रोसेस को जितने बार भी रिपीट करना है, वो काउंट वैल्यू किसी रजिस्टर में लोड की जा सकती है. तो पहला स्टेप यही होगा इनिशियलाइजेशन का. ठीक है, उसके बाद डिस्प्ले, देन अपडेट. तो इनिशियलाइज करने के बाद जो भी वो टास्क है वो परफॉर्म होगा. उसके बाद काउंट वैल्यू है उसको अपडेट किया जाएगा या तो इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन का यूज करके या डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन का यूज करके. और अपडेट करने के बाद जो ये चेक किया जाएगा कि वो फाइनल जो काउंट है, इज दिस फाइनल काउंट. ये जो काउंट वैल्यू आई है क्या ये फाइनल काउंट है? क्या उतने बार टास्क रिपीट हो चुका है? इफ द आंसर इज यस, देन इस लूप से बाहर आ जाएंगे. The next instruction will be executed. And if the answer is no, then the same tasks will be repeated again. And these tasks will be repeated again and again until the final count is reached. This condition is this final count. This condition can be checked with the help of conditional jump instructions. Okay? तो इस तरह से काउंटर को डिजाइन किया जाता है. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइम डिलेस के बारे में. तो टाइम डिले क्या होता है, कब यूज किया जाता है? तो टाइम डिले कैन बी यूज्ड इन सेटिंग अप द एक्यूरेट टाइमिंग बिटवीन टू इवेंट्स. अगर दो इवेंट्स के बीच में एक्यूरेट टाइम को सेटअप करना है तो वहाँ पर टाइम डिले का यूज किया जा सकता है. और जो प्रोसेस है टाइम डिले को डिजाइन करने का और काउंटर को सेटअप करने का, बोथ द प्रोसेसेस आर सेम. So the process to set up a time delay is, first of all, a register is loaded with a number depending on the time delay required. जितना टाइम डिले रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग उस रजिस्टर में नंबर को लोड किया जाता है. Then the register is decremented until it reaches 0. The loop causes the delay depending on the क्लॉक पीरियड ऑफ द सिस्टम. सबसे पहले जितना टाइम डिले रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग रजिस्टर में नंबर को लोड किया जाता है. उसके बाद जो प्रोसेस करने के बाद उस रजिस्टर
में जो वैल्यू है उसको डिक्रीमेंट किया जाता है जब तक कि वो 0 पर ना पहुंच जाए। ये कैसे चेक होगा कि 0 वैल्यू आया रजिस्टर का कि नहीं? ये चेक होगा विद द हेल्प ऑफ कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, और उस सिस्टम का जो भी क्लॉक पीरियड होगा उसके अकॉर्डिंग उस लूप से डिले मिलेगा। तो इस तरह से टाइम डिले का जो प्रोसेस है उसको सेटअप किया जाता है। इसको हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। तो जो अगला सेक्शन है उसमें टाइम डिले यूजिंग वन रजिस्टर, एक रजिस्टर का यूज करके कैसे टाइम डिले को सेटअप किया जाता है ये हम यहाँ पर देखेंगे। जो ऊपर हमने अभी डिस्कस किया है उसको हम इस सेक्शन में और समझेंगे विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट। तो पहले तो एक रजिस्टर में काउंट वैल्यू लोड होती है, उसके बाद वो लूप एग्जीक्यूट होता है जब तक कि काउंटर 0 पर ना पहुंच जाए। देखते हैं इसको फ्लो चार्ट की हेल्प से। तो ये जो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि सबसे पहले लोड द डिले रजिस्टर, मीन्स कि जो भी वैल्यू है काउंट वैल्यू उसको रजिस्टर में लोड करना। ठीक है, उसके बाद उस रजिस्टर को डिक्रीमेंट करना, उसके बाद उसको चेक करना कि जो वैल्यू लोड हुई थी वो पूरा कंप्लीट हो गया कि नहीं। तो इसको चेक करने के लिए इज द वैल्यू ऑफ रजिस्टर इज 0, इफ द आंसर इज yes then the next instruction will be executed, and if the answer is no then the same task will be repeated again. तो जो पहला स्टेप है लोड डिले रजिस्टर, काउंट वैल्यू को सेट करना, तो इसमें हम देख सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन यूज हुआ है MVI C, FFH। ये एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल में MVI C, FFH मीन्स लोड रजिस्टर C with FFH। देन उसके बाद क्या करना है, C रजिस्टर को डिक्रीमेंट करवाना होगा। तो उसके लिए कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं, तो DCR-C। When this instruction will be executed, then the content of register C will be decremented by 1. Okay? उसके बाद चेक करना है कि रजिस्टर का कंटेंट 0 है कि नहीं, और इसी के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है कि सेम इंस्ट्रक्शन ऊपर के एग्जीक्यूट होंगे, यही लूप रिपीट होगा, या फिर कोई दूसरा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो चेक करने के लिए यहाँ पर JNZ इंस्ट्रक्शन का यूज किया गया है। जंप इफ नॉट 0, जंप इफ नॉट 0 टू लूप। तो चेक यहाँ पर करना है कि 0 फ्लैग सेट है कि रीसेट। अगर 0 फ्लैग सेट नहीं है तो उस केस में फिर से यहाँ पर जंप होगा, प्रोग्राम का जो सीक्वेंस है एग्जीक्यूशन फिर से यहाँ से स्टार्ट होगा, मीन्स जंप बैक टू डिक्रीमेंट C। दिस लूप विल बी रिपीटेड अगेन अंटिल द 0 फ्लैग इज सेट। ठीक है, और अगर 0 फ्लैग यहाँ पर सेट होता, कंडीशन अगर आंसर येस होता तो फिर इस लूप से बाहर आ जाते और अगला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये एक एग्जांपल है टाइम डिले लूप का। इसमें फ्लो चार्ट शो किया गया है और विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्शन फ्लो चार्ट को हर जो प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्शन को यूज किया गया है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम अब ये तो हमने फ्लो चार्ट और इंस्ट्रक्शन को देखा, अब कितना टाइम लग रहा है इसको एग्जीक्यूट होने में, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये पूरा जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको एग्जीक्यूट होने में कितना समय लग रहा है। तो इसके लिए जो MVI इंस्ट्रक्शन है MVI C, FFH, तो हमने इसका टाइमिंग डायग्राम पढ़ा था, वहाँ पर देखा था कि ये 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, और ये जब एग्जीक्यूट होता है तो टोटल नंबर ऑफ T स्टेट्स लगते हैं 7 कैसे, ऑपकोड फेच और मेमोरी रीड। तो 4 + 3 टोटल नंबर ऑफ T स्टेट्स आर 7। देन DCR-C, this is 1 byte instruction and 1 machine cycle, so fetch number of T states are 4. JNZ instruction, this is 3 byte instruction. Okay, this is 3 byte instruction. तो ये जो जंप इंस्ट्रक्शन है इसमें कितने T स्टेट्स लगेंगे,
यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 10/7। इट मीन्स कि JNZ इंस्ट्रक्शन जो है, या तो ये जब एग्जीक्यूट होता है तो ये एक कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन है, तो ये चेक करता है कि वेदर द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स. So when the condition is true, then the program sequence is changed, and the control of program goes to somewhere else. तो जब प्रोग्राम का सीक्वेंस चेंज हो जाता है कब? जब कंडीशन ट्रू होता है. तो कंडीशन ट्रू होने के केस में नंबर ऑफ टी स्टेट्स होंगे 7 होंगे, सॉरी 10 होंगे. कंडीशन ट्रू जब होगा, जब प्रोग्राम का सीक्वेंस जब चेंज होगा, उस केस में नंबर ऑफ टी स्टेट्स 10 होंगे. और जब कंडीशन फॉल्स होगा तो उस केस में प्रोग्राम का सीक्वेंस चेंज नहीं होगा, अगला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा. तो लूप से बाहर आना होगा. उस केस में कंडीशन फॉल्स होने के केस में कितने टी स्टेट्स लगेंगे? 7 टी स्टेट्स in order to execute the JNZ instruction. When the condition is false, it will require 7 t states, and when the condition is true, it will require 10 t states. तो इस पूरे ये जो इंस्ट्रक्शंस है, इनको एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लग रहा है, अब हम ये चेक करने जा रहे हैं. तो सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन है MVIC, FFH. सपोज कि सिस्टम जो है उसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी 2 मेगाहर्ट्ज है. 2 मेगाहर्ट्ज है तो हम क्लॉक पीरियड ऑब्टेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला क्लॉक पीरियड इक्वल टू 1 फ्रीक्वेंसी. तो हमें फ्रीक्वेंसी पता है, तो वी कैन ऑब्टेन द क्लॉक पीरियड, एंड द क्लॉक पीरियड विल बी 0.5 माइक्रोसेकेंड. नाउ वी वांट टू रिक्वायर व्हाट इज द टाइम, we want to obtain what is the time required to execute the MVIC, FFH instruction. तो किसी भी इंस्ट्रक्शन को या किसी भी सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लग रहा है, ये अगर हमें पता करना है, तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टी स्टेट्स. उस इंस्ट्रक्शन को या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट होने में कितने टी स्टेट्स की रिक्वायरमेंट है, ये हमें ऑब्टेन करना होगा. तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी पता कर लिया कि MVIC, FFH को एग्जीक्यूट होने में 7 टी स्टेट्स की रिक्वायरमेंट है. तो अगर 7 टी स्टेट्स मीन्स अगर एक टी स्टेट्स के लिए कितना टाइम लग रहा है? 0.5. तो 7 टी स्टेट्स के लिए कितना लगेगा? मल्टीप्लाई कर देंगे 7 इंटू 0.5, इट विल बी 3.5 माइक्रोसेकेंड. तो 3.5 माइक्रोसेकेंड की रिक्वायरमेंट है MVIC, FFH इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में, अगर क्लॉक फ्रीक्वेंसी सिस्टम की 2 मेगाहर्ट्ज है. तो इसके बाद जो नेक्स्ट 2 इंस्ट्रक्शंस हैं, जो कि एक लूप को फॉर्म करना है, ये जो नेक्स्ट 2 इंस्ट्रक्शन है DCRC और JNZ, ये दोनों इंस्ट्रक्शन मिलकर एक लूप को फॉर्म कर रहे हैं. और ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? तो रजिस्टर C में FFH वैल्यू को लोड किया गया है ना. इट मीन्स अगर इसके डेसिमल इक्विवेलेंट की बात करें तो टोटल 255 टाइम्स ये लूप एग्जीक्यूट होगा. तो इस लूप के टाइम को कैलकुलेट करते हैं हम. तो लूप जो है, यहाँ इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं लूप के टाइमिंग को? इट कैन बी कैलकुलेटेड एज T इंटू लूप टी स्टेट्स इंटू N10. यहाँ पर TL क्या है? TL मतलब हम लोग लूप में टाइम जो कैलकुलेट कर रहे हैं, टाइम डिले इन द लूप. एंड T क्या है? सिस्टम क्लॉक पीरियड, जो कि हमने ऑब्टेन किया है. N10 क्या है? इट इज द इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर ऑफ द हेक्साडेसिमल काउंट लोडेड इन द डिले रजिस्टर. तो डिले रजिस्टर में कितना नंबर लोड किया गया था? 55H, जो कि इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना होगा? 255. तो इस फॉर्मूले में अगर हम लोग वैल्यूज को पुट करें तो वी कैन ऑब्टेन द टाइम डिले इन द लूप. तो यहाँ पर T कितना है? सिस्टम क्लॉक पीरियड कितना है? 0.5 इंटू 10⁻⁻⁶, जो हमने कैलकुलेट किया था. और लूप टी स्टेट्स कितने होंगे? यहाँ पर देख लीजिए, काउंट कर लेते हैं. 4 है और 10 है. ठीक है, तो 10 + 4 कितना हो गया? 14. तो यहाँ पर 14. इनको जब कैलकुलेट किया मल्टीप्लाई करके तो अप्रॉक्सीमेटली 1.8 मिली सेकेंड वैल्यू आएगी. तो ये टोटल टाइम रिक्वायर्ड है इस लूप को एग्जीक्यूट होने में. लेकिन यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट लिखा हुआ है, इसका कुछ मतलब है. इसका मतलब ये है कि जो JNZ इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर
JNZ इंस्ट्रक्शन जब कंडीशन ट्रू होगा तो उतनी बार ये लूप एग्जीक्यूट होगा, और लास्ट टाइम पे जब वैल्यू 0 हो जाएगी सी रजिस्टर में, तो फिर से वो लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, जबकि कंडीशन फॉल्स होगा और लूप से बाहर आ जाना होगा। तो उस केस में जो लास्ट वाला टाइम होगा, उस केस में कितने टी स्टेट्स लगेंगे? सिर्फ 7 टी स्टेट्स। तो एग्जैक्ट वैल्यू या एक्यूरेट वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए जो हमने यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट किया है 1.8 मिली सेकेंड, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना होगा कौन सी वैल्यू? जो लास्ट वाली जो टी स्टेट रहेगी जिसमें 7 टी स्टेट्स लगेंगे, उसमें कितना टाइम रिक्वायरमेंट है उसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो जो लास्ट वाला जो यहाँ पे हमने सारे 255 लूप्स में कितने टी स्टेट्स माने हैं? 10, जबकि जो लास्ट वाला टी स्टेट है उसमें सिर्फ 7 टी स्टेट्स चाहिए, यानी कि 3 टी स्टेट्स हमने एक्स्ट्रा इसमें कंसिडर कर रखा है। तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए 3 टी स्टेट्स है, उसमें जितना भी टाइम लगेगा उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो जो फाइनल जो लूप का जो टाइम रिक्वायरमेंट होगा, वो जो हमने अभी कैलकुलेट किया है TL, टाइम डिले इन द लूप, माइनस 3 इसलिए क्योंकि हमने 3 एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर रखा है, तो 3 स्टेट्स में लगा टाइम उसको सब्ट्रैक्ट करना होगा, माइनस 3 टी स्टेट्स इंटू क्लॉक पीरियड। तो जो हमारी वैल्यू आई 1785 माइक्रो सेकेंड माइनस 1.5 कैसे आया? तो क्लॉक पीरियड कितना है? 0.5 माइक्रो सेकेंड है। तो जो सिस्टम क्लॉक पीरियड है वो कितनी है? 0.5 माइक्रो सेकेंड। उसमें हम जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 माइक्रो सेकेंड, एंड इट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस वैल्यू ऑफ TL, एंड जो टोटल वैल्यू आएगी, एग्जैक्ट जो वैल्यू आएगी लूप में कितना टाइम रिक्वायर्ड है, उसकी जो वैल्यू आएगी 1783.5 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, तो ये हमने लूप की एग्जैक्ट वैल्यू या एक्यूरेट टाइम डिले को कैलकुलेट किया। उसके बाद जो टोटल डिले कितना होगा? टोटल डिले मीन्स कि यहाँ पर जो लूप में जितना डिले प्रोवाइड हो रहा है वो, प्लस जो आउट ऑफ द लूप, जो लूप के बाहर जो इंस्ट्रक्शन है उसमें जितना टाइम डिले है, दोनों को ऐड करना होगा ना टोटल वैल्यू को ऑब्टेन करने के लिए, टोटल डिले को ऑब्टेन करने के लिए। तो जो टोटल डिले होगा, इट विल बी टाइम टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस आउटसाइड लूप प्लस टाइम टू एग्जीक्यूट लूप इंस्ट्रक्शंस। तो आउटसाइड लूप में कितना समय लगा था यहाँ पर? 3.5 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, तो 7 इंटू 0.5 इट विल बी 3.5 माइक्रो सेकेंड, प्लस अभी हमने जो लूप के लिए कंसिडर किया है, कैलकुलेट किया है 1783.5 माइक्रो सेकेंड, 1783.5 माइक्रो सेकेंड, दोनों को ऐड कर देंगे तो इट विल बी 1787 माइक्रो सेकेंड, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.8 मिली सेकेंड, 1.8 मिली सेकेंड। तो इस तरह से किसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में कितना टाइम डिले है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो इस लेक्चर में हमने कैसे काउंटर और टाइम डिले को यूज किया जा सकता है ये पढ़ा। अगला जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।